has progressively worsening dyspnea on exertion over, ठीक है, आखिरी 2 हफ्तों से उसको जो है वो dyspnea है on exertion. Her shortness of breath has severely limited her activities and has been to persist even rest. तो आपको जो shortness of breath है वो एक्टिविटी के साथ साथ रेस्टिंग फेज में भी फील. So past medical history में patient has type 2 diabetes mellitus for the last 5 years, controlled hypertension for the last 40 years. Okay, के बूढ़े हो गए थे. Mother died at the age of 83 after a hip. Brother at 80 alive with no significant history. वो family history कोई इतनी heart failure की नहीं है. Social history में teacher who lives at home alone reports enjoying a cocktail playing cards and with friends. तो medication जो है minoxidil 10 mg per oral BID. Review symptoms में general patient reports a recent weight gain along general patient को जो है weight gain हुआ है और in her state of health and inability to get around as she usually has in the past. That means के वो अब जो है वो physical activity बहुत कम करती हैं या कर नहीं पाती हैं. She has no complaint of any chest pain but does report dyspnea on exertion as well as orthopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea. ठीक है, at night जो है वो shortness of breath और she has noticed edema. ठीक है, तो edema peripheral है या pulmonary edema है. It also helps in differentiating the patient is having or diastolic heart failure. ठीक है, फिर respiratory में she reports shortness with a new cough that is not productive, non-productive cough. She has not any recent respiratory infection. उसमें कोई respiratory infection अभी recent नहीं हुई है. ठीक है, GI में she reports no recent changes in the bowel habits. Genitourinary में no complaints. No complaint of MS pain or weakness, just a general inability to exercise secondary to the becoming winded. इसके अलावा clinical examination में the patient is sitting up on the gurney in the emergency department. That means the patient is conscious. Blood pressure जो है वो 150/100 है. Pulse 100/30 है. Respiratory rate 28 है, which is quite high. Weight 73 है और height जो है वो 5'3" है. ठीक है, तो pale color है again, that means के indicating के blood supply to the skin not proper. फिर neck में वो उसकी डिस्टेंशन है. फिर जो है वो lungs में respirations are even, there are fractals in both lung fields, posteriorly noted 1/3 of the way up the lungs fields. फिर heart में regular rhythm है, no robs, variation in intensity of S1 and as expected. S3 appreciated at the apex in the lateral positions. फिर abdomen में liver or spleen slightly enlarged, that means hepatomegaly or slightly indicated.
तो इसके अलावा एक्सट्रीमिटीज में पेशेंट हैविंग पीडल एडिमा बायलैटरली, ठीक है, पेशेंट को पीडल एडिमा है, पेरिफेरल एडिमा, रेडियल एंड पुअर इंटेंसिटी बायलैटरली, जो पीडल पल्स दैट मींस के जो पेरिफेरी में पल्स वो वीक है, दैट मींस के जो ब्लड है वो फोर्स के साथ या स्ट्रेंथ के साथ पेरिफेरी में पंपिंग नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो पल्स वो वीक है, ठीक है। लैब वैल्यूज में सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, सीरम क्रिएटिनिन, ग्लूकोज, हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट, यूबीसी जिसमें लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, फिर ट्रोपोनिन है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एएसटी, एएलटी, एएलपी, टोटल बिलीरुबिन, क्रिएटिनिन काइनेज, ठीक है, क्रिएटिनिन काइनेज में स्पेसिफिकली एमबी, ये भी आपको स्लाइड्स में मैंने पढ़ाया था कि स्पेसिफिकली कौन से क्रिएटिनिन काइनेज जो है वो इंडिकेट करते हैं हार्ट फेलियर। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन टाइम, आयन टाइम, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर ईसीजी में जो है वो साइनस टैकिकार्डिया रेट ऑफ 112, क्यूआरएस वेव जो है वो 0.08, तो ये जो ईसीजी के इंडिकेट कर रहा है। चेस्ट एक्सरे में एविडेंस ऑफ इंटरस्टिशियल एडिमा एंड सम अर्ली एल्वुलर एडिमा, ठीक है, तो दैट मींस के जो एल्वुला है उनमें भी एडिमा इंडिकेट हुआ है चेस्ट एक्सरे से। असेसमेंट क्या है? डाइट कंट्रोल पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस एंड न्यू ऑनसेट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। न्यू ऑनसेट का मतलब ये है कि उसको पहली दफा जो है वो हार्ट फेलियर का जो है वो अटैक हुआ है। इसके अलावा जो डायबिटीज है उसके लिए वो पेशेंट कोई मेडिकेशन ऐसे ले रहा, वो डाइट के थ्रू ही अपनी डायबिटीज को या ब्लड शुगर को कंट्रोल रखती है। Patient was admitted to telemetry unit. A 2-dimension echocardiogram was obtained to evaluate left ventricle and valvular function. Results revealed evidence of impaired ventricular relaxation, and elevated left ventricle, left atrial filtration प्रेशर, ठीक है। तो आप अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजी को स्टडी करें तो उसमें कुछ चेंबर्स हैं। एक हार्ट का चेंबर जब फिल होता है उसके बाद फिर हार्ट ब्लड को पंप करता है एक चेंबर से दूसरे चेंबर में, दूसरे से तीसरे चेंबर में, फिर लंग्स में, फिर लंग्स के बाद चौथे चेंबर में। तो एक साइकिल जो हार्ट का साइकिल है उसको अगर आप स्टडी करें उसके बाद आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हार्ट फेलियर होगा तो उसकी वजह से किस तरह से वो साइकिल डिस्टर्ब होगा और जो ब्लड की रिटेंशन है वो किस चेंबर में होगी, ठीक है। क्योंकि अगर एक चेंबर से हार्ट जो है वो ब्लड को सही तरह पंप नहीं कर पा रहा है एक चेंबर से दूसरे चेंबर में, तो क्या होगा, पिछले चेंबर में जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, वजह से जो है वो डिस्फंक्शन हो सकते हैं या फिर डायलेशन हो सकती है। Ejection 40 to 45 to 50%, वो क्या इंडिकेट कर। अच्छा, फिर प्रॉब्लम्स में आते हैं। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ दिस पेशेंट्स ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। इस पेशेंट में अभी तक अगर आप कोई ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं या आपको लगते हैं नॉक्टिल से रिलेटेड कोई देखें कि ड्रग कहीं एग्रावेट तो नहीं करती हार्ट डिसऑर्डर्स को या कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स को, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो ये केसेस होते हैं उनमें एज अ फार्मासिस्ट आपका ज्यादा जो वर्किंग है दैट इज रिलेटेड मेडिकेशन, ठीक है। ड्रग डायग्नोसिस इवैल्यूएशन आपका पार्ट है, लेकिन एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट यू आर मोर फोकस्ड ऑन दी ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन्स और मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ड्रग इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स भी एज ए फार्मासिस्ट आपका फर्ज है टू आइडेंटिफाई है कहीं ये ड्रग
की वजह से तो नहीं है, कहीं वो ऐसी मेडिकेशन तो नहीं ले रही जिसकी वजह से उसका जो हार्ट फेलियर है वो मजीद एग्रावेट कर रहा है, तो उसका मेडिकेशन हिस्ट्री को देखें हम। ठीक है, व्हाट साइन एंड सिम्टम्स एंड अदर इंफॉर्मेशन इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ द सिवियरिटी ऑफ द हार्ट फेलियर। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम्स क्या है और आप कैसे इंडिकेट कर सकते हैं कि पेशेंट कितनी सिवियर हार्ट फेलियर का शिकार है। What are the classification or staging? Patient किस स्टेज पे है हार्ट फेलियर की? Could any of these patients problem have been caused by drug therapy? ठीक है, आपके ख्याल में कहीं कोई मेडिकेशन तो पॉजिटिव एजेंट नहीं है पेशेंट की इस कंडीशन तक पहुंचने की। फिर गोल्स क्या आप असाइन कर सकते हैं इस पेशेंट में, और अदर मेडिकल कंडीशंस, अगर पेशेंट और कौन सी मेडिकेशन आप समझते हैं कि पेशेंट को देनी चाहिए। ठीक है, फिर थेरेप्यूटिक अल्टरनेटिव्स, व्हाट मेडिकेशंस आर इंडिकेटेड इन लॉन्ग टर्म पेशेंट हार्ट फेलियर बेस्ड ऑन दी स्टेज। तो उसकी स्टेजिंग की बेस पे आप लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में एज पर गाइडलाइंस। अच्छा, गाइड जब आप फेल कर रहे हैं या साइन, तो आपने रेफरेंसिंग करनी है। गोल्स ऑफ थेरेपी में जो है वो आप लोग बुक का हवाला जो है, जैसे मैंने स्लाइड्स हैं वो सर्टेन बुक से बनाई हैं, आप वहां से जाके पढ़ें और रेफरेंस जो है वो हर क्वेश्चन के साथ ऐड करें। ठीक है, ताकि जाके उसको इजीली पढ़ सकूं और ना हो और मुझे पता हो कि ये आपने कहाँ से इसको किया है। गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइन को यहाँ पे करते हैं तो आप उसका रेफरेंस जरूर दें और कोशिश करें कि जो है वो बेस्ड रिकमेंडेशन हो, जैसे कि आप ट्रीटमेंट अगर पेशेंट के लिए रिकमेंड कर रहे हैं तो वो रेफरेंस और विद एविडेंस होना चाहिए। वो हवा पे जो है ना बातें नहीं होनी चाहिए। एक ऑथेंटिक रेफरेंस आपने ट्रीटमेंट रेजिमेंट को इंडिकेट करना है। और डोजेज, तो ये उसका पूरा डोजेज रहता है, आप उस पेशेंट को क्या डोजेज दे। क्लिनिकल पैरामीटर्स आर नीडेड टू इवैल्यूएट मॉनिटरिंग थेरेपी। मॉनिटरिंग के लिए आप कौन कौन सी लैब वैल्यूज, कौन कौन सी को इंक्लूड करेंगे अपनी मॉनिटरिंग प्लान में, टू फाइंड आउट वेदर आपने जो ट्रीटमेंट पेशेंट को दी है इट इज वर्किंग और नॉट। फिर क्लिनिकल कोर्स में ओवर नेक्स्ट 3 days पेशेंट रिसीव मैक्सिमल drug therapy and her condition improved. She was discharged on lisinopril. अच्छा, उसको डिस्चार्ज में उन्होंने मेडिकेशन दी, लिसिनोप्रिल, मेटाप्रोलोल, फिरोसिमाइड। either they are authentic or एजुकेशन में आप को क्या हासिल करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो है पेशेंट दोबारा से इस ट्रबल में ना जाए और दोबारा से ऐसी कोई एपिसोड डेवलप ना करे, वो अपना वेट कंट्रोल करे, डाइट को करे, मेडिकेशंस को टाइम ले, फिजिकल एक्सरसाइज को इंक्लूड एज अ फार्मासिस्ट काउंसल पॉइंट्स होते हैं। On follow up with her geriatrician, the patient is noted to have 2 kg weight gain from baseline weight. Her exercise tolerance and ability to conduct has improved. Treatment जो है वो improve हुआ है। Outline a plan for maximizing the patient's current medication regimen for heart attack. तो आपने अपना प्लान देना है कि इस पेशेंट में आप जो है वो हार्ट फेलियर के लिए कौन सी मेडिकेशन इंक्लूड करेंगे, किस डोज पे, कितने ड्यूरेशन के लिए। द टाइट्रेशन ऑफ मेटोप्रोलोल फॉर दिस पेशेंट। तो मेटोप्रोलोल जो है वो उसकी टाइट्रेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड और क्यों रिक्वायर्ड है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का मतलब ये होता है कि स्लोली एंड स्टेडी जो है वो डोज को इंक्रीज किया जाए
और जब विड्रॉ किया गया मेडिकेशन को तो स्लोली एंड स्टेडीली उसकी डोज को लो किया गया, इसको किया गया है। What common adverse effects should be anticipated with metoprolol, ठीक है। तो इस पेशेंट में कौन से जो है कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं मेटोप्रोलोल के और उनको मैनेज कैसे करना है। तो ये जो है तो काइंडली जो फी है वो इसको सबमिट करवा और जो है वो मुझे इसके अलावा नेक्स्ट फ्राइडे बच्चे हैं और इसके अलावा जो है वो जो ग्रुप 4 है उसको हम डिजीज असाइन करेंगे ताकि वो प्रेजेंट करे और नेक्स्ट मंडे को आई विल गिव अ लेक्चर ऑन निमोनिया। निमोनिया को हम लोग कवर करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो मोस्ट प्रोबेबली होगा। ठीक है, तो दैट इज ऑल फ्रॉम टुडे। हमारे आपके साथ ये शेयर कर दी होंगी केस बुक, इसमें से आपके स्टडी करें और इंडिविजुअली पर्सन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।